تحریر سے اگر راضی ہو تو ذمہ دار دستخط کرنا. یہ گھر میں آپسی مفاہمت کے سلسلے میں آپسی مفاہمت کیا ہے؟ آپسی مفاہمت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے؟ کیا سمجھانا آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آپ کے نظریات مجھے سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے. اصل میں آپ اس کے گھر کا مسئلہ ہے اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا سمجھائیں گے؟ آپ کے گھر میں کیا اختلافات چل رہے ہیں جن پر یادیں جو چل رہے ہیں تو آپ کو واضح رکھیں. کوئی اطمینان نہیں ہے یا اپنے دل کے سلسلے میں اطمینان نہیں ہے؟ غلط بات ہے، انتہائی غلط بات ہے. مقلدین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد شفافی کے رفع بدن کرتے آپ کو معلوم نہیں ہے کرتے میں مقلدین کی بنیاد کیسے ہوتی ہے؟ زبردستی آپ ہم کہہ رہے کہ نہیں ہے آپ زبردستی ہمارے اوپر تھوپ رکھے ہیں ایسا کیسے ہوتا؟ لیکن شوافے کبھی کسی حنفی کی دعوت لیتے تھے کہ جو ہے آپ کی نماز وغیرہ پڑھنے کی صحیح نہیں ہے آپ پڑھنے تو آپ یہ کہاں سے کہہ رہے کہ بات نہیں تھی وجود ہی نہیں تھا وجود نہیں کیا تھا ہمارے ہندوستان میں کیرلا کے علاقوں میں شوافے بستے آپ کے حیدرآباد میں جو الہ آباد علاقوں میں شوافے بستے کیا وہ شوافے احناف کے خلاف کوئی کارروائی کرتے کیا حنفیوں کے اوپر یہ بولتے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے آپ کا پیغام کریں گے تو آپ کی نماز ٹھیک ہوگی ایسی اگر کوئی تاریخ آپ کے حیدرآباد شہر کی ہو ہمارے ہندوستان کو آپ کرتا ہے ہندوستان اور حیدرآباد وغیرہ شوافی کی بات ہو رہی ہے شہر حیدرآباد اور ہندوستان کی تخصیص ہے آپ بتائیں تخصیص کیوں کرتے ہیں ایسے واقعات موجود ہے کہ بعض شوافی شافی علماء نے حنفی نماز کا مذاق کرایا سمجھ رہے اور اس بنیاد پر شافی نماز پڑھنے کی دعوت دی ہے اسے کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں معلوم تو البت جو شافعی حضرات یا حنابلہ حضرات حنفیوں کے پیچھے نہیں پڑتے جو ہے آپ کی نماز غلط ہے آپ کی نماز غلط ہے نہیں یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں نہیں پڑھتے بلکہ کتابیں موٹی موٹی لکھ کر چھوڑ دی آپ کے جو جتنے شاعرین ہیں آپ کے جو تھے عبادت کا نقطہ چینی کیے ہیں امام شافعی کے ماننے والوں بہرحال ان کا تشریح ہے اپنے مسئلہ ہم کیا کریں علت ترجیح ہے ہم کیا کریں حدیث کیا کریں اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ رفع یدین کر کے رفع یدین کا وجود ہی نہیں ہے شافعی بھی ایک کتابیں پڑھی آپ وجود کے ممکن نہیں ہے دلیل آپ کے ثبوت کے ممکن نہیں ہے کہاں ممکن نہیں ہے ثبوت کے ممکن نہیں ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح البخاری فتح الباری میں جہاں پر یہ بحثیں کرے تو کل سلسلے میں جو احناف کے مستدلات کو بیان کرے اس کے روات کی اس کے سندوں کے مجھے تحصیل بیان کرے کہ اس کے روات بخاری اور مسلم کے روات میں سے تحصیل بیان کرے وجود کو تقریب ایسا انکار نہیں کرے کہ جو ہے حدیثوں کا وجود ہی نہیں ہے. اب ہمارے بھائی جو ہے اللہ کے ہمارے نوجوانوں کے نہیں ہے رفع دین ہے ہی نہیں یہ آپ کے بھائی کا رویہ بھائی وہی ان کو پوچھا آپ کے بھائی یہ الحدیث کے لیے الحدیث ہے یا آپ کے بھائی ہے صرف جی سب الحدیث نہیں وہ صرف ان کی بات کر رہی ہے الحدیث یہ جماعت الحدیث کی بات کر رہی ہے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یہی ہے میرا جو ہے کہ عام طور پر جو روایت آپ یہ یہاں جو بیٹھے آپ یہ منوانے کے لیے بیٹھے کہ ترک رفع الیدین بھی ثابت ہے یا ترک رفع الیدین ہی ہے یہ سوال آپ سے کرنا ہے جی نہیں میں یہ ثابت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ ترک رفع الیدین بھی ہے اور رفع الیدین بھی ہے جی آپ کے بھائی کے بیان کے مطابق
कह रहे कि तर्क मनसूख है, इसको हम साबित करेंगे, आपने कहा मैंने कहा मैं रफ़ा मंसूख का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करा, मेरा लग लगा आपके पास को बताया के सिलसिले में हमारे भाई साहब को दलील पूछा, हमारे भाई साहब को दलील बदला, मैं उस दलील के सिलसिले में जो है कुछ चीज़ें पेश किया जिससे उस दलील के साथ साथ हमारा भी क्या है बात समझ सामने आ रही थी कि जो है सिर्फ वही नहीं ये भी, तो इस सिलसिले में सब आगे बात करेंगे। मैं मनसूख का भी कायल नहीं हूँ, अलबत्ता ऐसे दलाइल हैं हमारे पास जो नस्ल के ऊपर दलालत करें। गलत नहीं बोले मेरे मैं और मेरे बुजुर्गों में से आज तक कोई भी रफ़ा यदैन गलत इनके इस्तेमाल नहीं है, आप किताबों में शान मनसूख होने का दावा किसी ने नहीं किया, मनसूख का दावा नहीं करें, अलबत्ता ऐसे हम लोग ऐसे जो है तरजीहात, ऐसी तरजीहात बयान करें जो नस्ल के ऊपर दलालत करने वाली है। तुम लोग क्यों छुड़ रहे हो पहले हदीस से? बोलने की जरूरत नहीं, जब आप सही विषय में सवाल करेंगे तो आप ये ऐसे दलाइल हैं तो नस्ल पे दलालत करते हैं, उससे आप समझते क्या है, समझाना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ तो कह रहे कि हम मनसूख नहीं मानते, फिर कह रहे कि ऐसे दलाइल है कि जिनसे साबित हो गया कि मनसूख हो गया। दोनों में बड़ा फर्क है। सराहतन नस्ल का अगर मैं करूँगा तो मेरे लिए दलील नस्ल बयान करना मेरे लिए ज़रूरी था, और अगर ये बात मैं कहूँ तो है ऐसी बातें हैं, ऐसी क्या बोलते हैं नज़ाहिर हैं, मिसालें हैं जिससे नस्ल की तरफ दलालत मिलती है, इशारा मिलता है। ये बात एक अलग है, ये बात एक अलग है। और डायरेक्ट अगर मैं नस्ल का ऐलान कर दूँ तो आप उधर दलील नस्ल पूछेंगे तो इशारा करने वाले के बाद वो पूछेंगे आपसे, है ना? ये यहाँ बात तो अलग मकसद समझा, बैठने का मकसद पैदा का इंतजार नहीं है, पैदा करना मैं करता हूँ, पैदा का इंतजार हम नहीं करते। हम ये मुताला कर रहे हैं तरीके रफ़ायदे के वजूद को ही न मानना, ये कहाँ तक सही? हमारे नौजवानों के साथ यहाँ ये मामला किया जा रहा है, उन्हें पकड़ के उनसे मिल के मुलाकात करके उन्हें ये कहा जा रहा है कि रफ़ायदे नहीं करेंगे तो नमाज नहीं पढ़ेंगे। लोग कह रहे हैं कौन अहले हदीस के जो नौजवान बच्चे होते हैं ना, वो हमारे नौजवानों की इस तरह के बातें बोलते हैं। इसके नौजवान हालात मिलते हैं बच्चे, आप ये कह रहे हैं, मैं ये कहूँ कि आपके जो बच्चे हैं वो कहते हैं रसूल है, पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, बात को कहना छोड़ दिया, ये आपके बच्चे क्या है? ये बच्चों की बिना पर बात कहते करने वाली नहीं, वही साहब बात तो पहले इल्म को जाता है। मैं इसीलिए आपको बोला कि जो है यहाँ पर आपके ज़रिए से यही साबित करेंगे कि तर्क रफ़ायदैन का भी सुनना, ताकि हमारे भाइयों को इस इल्म हो जाए कि जो है तर्क रफ़ायदैन तो जो नमाज पढ़े उनकी भी नमाज बिल्कुल ठीक तरीके से होती है, सुन्नत के मुताबिक होती है। ठीक कह रहा हूँ, ठीक है ना? मैंने बात नहीं शुरू की थी, बात ये आपको गैर मुक़ल्लिदियत से एतराज़ है या सिर्फ अपने दिल से एतराज़ है? गैर मुक़ल्लिदियत से एतराज़ है, ठीक है। गैर मुक़ल्लिदियों के जो मसाइल है जिनका इशू करते हैं हमारे भाई, जिनका इशू करते रफ़ायदैन के मसले को उठाकर, तकलीफ के मसले को उठाकर, हाथ से चेकर बांधने के मसले को उठाकर, आमीन जोर से बोलने के मसले को उठाकर, ये सारे वो मसाइल हैं जिनको लेके इशू फैलाते हैं। इन इशूज़ में से एक इशू को हम आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। ये आप अर्ज करना क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? जी मतलब हम आपसे एक बात ये पूछना चाह रहे हैं कि तर्क रफ़ायदैन की अहादीस मौजूद है या नहीं? तर्क रफ़ायदैन की अहादीस मौजूद है, लेकिन अइम्मा मुहद्दिसीन में से तकरीबन सबों ने माशाअल्लाह ज़ईफ़ करार दिया, वो अभी साबित हो जाएगा। तो हदीस का वजूद है,
अब अगर हदीसें सही साबित हो जाएंगी तो आप तस्लीम करेंगे? हदीसें जो है उनको आप बोल रहे हैं ज़ईफ़ है, उन्हीं हदीसों को मैं अगर नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप अइम्मा मुहद्दिसीन को आप बुनियाद बनाएं, ठीक है। अगर उन्हीं अइम्मा मुहद्दिसीन के ज़रिए से हम उन हदीसों की सनदों को सही साबित कर देंगे तो क्या आप तस्लीम कर बिल्कुल देंगे? तस्लीम कर लेंगे। मुशक्किस सब लिखिए ज़रूर मुस्तफ़ा। आप बोले मौजूद है लेकिन अइम्मा मुहद्दिसीन ज़ईफ़ बोले। हमने आपसे कहा कि अगर उन्हीं अइम्मा मुहद्दिसीन के वजह से उन हदीसों की सनदों को हम सही करार दे दें तो क्या आप उन्हें तस्लीम करेंगे? सही आप बताते हैं तस्लीम करेंगे। बात तो करो, हो गई ना मतलब? बात तो करो। ये पूरी तहरीर आपकी हमारे सामने है, इसकी वजह से बात मुकम्मल हो जाए। जी आप थोड़ा देर इससे मुताबिक इस बात के कायल है, ये पहले बात है ना। कोई दावा होगा आपका तो उसके मुताबिक आप दलील पेश करेंगे, उससे मुताबिक जो गुफ्तगू करना है वो करेंगे। आप जरा बहुत सराहत के साथ भी कौन सा उसमें जो है अभी पढ़ लिए वो आप पढ़ लिए इसके ऊपर के साथ इस वक्त कैसे कर लेंगे? ये हमने बात शुरू की है इसी वो मौजूद तो जिस मौजूद को लेकर बात करेंगे, ठीक है, रफ़ा यदैन की शरई हैसियत और इस्लामी तारीख को उसका मामूल, ठीक है। ये बुनियादों पे कोई भी बात किताब और सुन्नत की बात किस दायरे में रहकर बात करना चाहिए वो हमारा, और मौजूद से हटने वाला साइन कहलाएंगे, हम हटेंगे तो हम साइन, आप हटेंगे तो आप साइन। देखिए ऐसे बोले वही बात होगी, उसूल की बेहतर बात होगी। आपने एक बात लिख दी है, आप अपने धैर्य के मुताबिक लिखे हैं, अब उसके मुताबिक हम आपको खाइन ठहराते या जालिम ठहराते कुछ भी ठहराते, ये आपकी मर्जी है ना। लेकिन उसूलों की बुनियाद पर जालिम कौन ठहरेगा और खाइन कौन ठहरेगा, ये तो दलाइल की बुनियाद पर फैसला होगा। जो बातें जो लिखी हुई हैं आप मुत्तफ़िक़ हैं ना, जो लिखा हुआ है इससे मतलब आपसे सवाल कर रहे हैं, सवाल मुकम्मल होने के बाद मुत्तफ़िक़ होंगे नहीं, कसरत करेंगे नहीं मतलब वो इशू होने के बाद में से मैं अपना दावा पेश करूँगा वो सब पहले बुनियाद हो जाएंगी, वो पास हो जाएंगी, वो चीज़ बात तय हो गई। बात तय करने के लिए लिखा था अभी हमने, बात तय करने के लिए लिखा था मैं क्या हदीसों से जो ना दलाइल बताओ, बाद में चलो सिग्नेचर कर लेंगे हम। सिग्नेचर पहले होना भैया, मैं इसमें ऐसी क्या भी बात नहीं लिखा आपके खिलाफ कोई हुज्जत बनने या ऐसी कोई बात नहीं लिखा। आप देखिए असल में पढ़ के सुना होता मैं फिर पढ़ के सुना ये कि पर्दे और बिगड़ने की बात और एतराज़ात बड़ाए एतराज़ात करने की बात ना, तो यहाँ आपके लिए बहुत सारे एतराज़ात की चीज़ें हैं, समझ लेना। पहली बात तो ये कि कुरान और हदीस आप जो रफ़ करते हैं वो इसलिए करते कि कुरान और हदीस में है, या इसलिए करते कि आपके इमाम उसके कायल है, इसलिए करते उस मौजूद पर बात करनी है ना नहीं। हम उस टॉपिक पर फरीदैन की आपने लिखा है इसमें फरीदैन के मुसल्लमा, तो फरीदैन के दरमियान मुसल्लमा क्या वो तो बातें होना चाहिए सुनिए ना। पहले बात आगे करके तो दो जजेस को बुलाते, अगर गुनाह देने किसी को लोग क्या करा, यहाँ पर गुनाह देने किसी को अगर रोके तो हमारे और आपके दरमियान दो जजेस होते थे, मगर ये सवाल वो नहीं था कि आपस में सुधार सफाई कराने का अफवाह समझ में आया। अब आप बोल रहे कि लिखे जो अगर आप बात होती है दो भाइयों के दरार को जो है ईमान लाए, क्योंकि खुदा ने अल्लाह के रसूल को आखिरी वक्त की जो है अपाइजन करके थे उसके हदीस पेश करें। आप बोलेंगे मैं तो हुई नहीं बोले बीवी राशि है उसका सवाल तो नहीं हुआ बोले आपका पहली जो बात जिस बात पे वो साफ हो जाना चाहिए, मनसूख नहीं है, रफ़ल भी है, रफ़ल नहीं भी है, रफ़ल भी है, रफ़ल नहीं भी है। आपका ये स्टैंड बता दें, ऐसा समझ में आता है क्या बोलना अगर रफ़ायदैन है बोलते हैं इस बात के जवाब दीजिए कि
آپ نہیں कर रहे हैं, आप कुरान हदीस में नहीं है इसलिए कर रहे हैं, या आप इमाम अबू हनीफा के यहाँ नहीं है इसलिए नहीं कर रहे? साहब सारे मुसलमान किताब और सुन्नत पे चलते हैं, आपको मालूम है। गलत बात है। सारे मुसलमान अगर किताब और सुन्नत पर चलते ना तो 4 फिरके की वजूद में आते लग रहे हैं। कौन से चार हैं? अहनाफ है, शवाफी है, मालिकी है, हनाबिला है। तो साहब हम इनको फिरका नहीं समझते, आप नहीं समझे तो जाओ, बल्कि कोई भी नहीं समझता। कोई भी जो अइम्मा अरबा के जो मुत्तबीन हैं ना साहब, इनमें से कोई भी एक दूसरे को फिरका नहीं क्या समझता, समझते हैं? सिर्फ मसलक का नाम है। मसलक का समझते हैं आप तो फिर और हर अइम्मा के मानने वालों का ये मानना है, ये अकीदा है, जज्बा है। हमारे अलावा जो बाकी 3 अइम्मा हैं उनके मुत्तबीन हैं वो अहले सुन्नत वल जमात में शामिल हैं, वो भी हक है। कोई ये नहीं कहता कि जो है हम सही हैं, बाकी सब सिरात मुस्तकीम से गुमराह हो चुके हैं, ऐसा कोई भी नहीं कहता। 4 अइम्मा और उनके मुत्तबीन इस बात पर मुत्तफिक है कि मसाली के अरबा बिल्कुल हक है और इनके मुत्तबीन सिरात मुस्तकीम में कायम। से सिरातुल मुस्तकीम पर कायम है, तो फिर हमको ये बात देखने को मिलती है और पढ़ने को मिलती है फिर अहनाफ के यहाँ कि शवाफे को हम अहले किताब के दर्जे में रखेंगे, उनको उनसे बेटी लेंगे, बेटी देंगे नहीं। ये बात पढ़ी आपने है ये समझ रहे हैं? अगर ये बात क्यों है? इस बुनियाद पर पैमाने पर विश्व के जो हमारे इमाम साहब गाड़ी के बाद इसके ऊपर कुरान की बात रहेगी, वो उन्वान को हटके थे कुरान को बात करें और बाकी बात करना क्यों उसका बुनियाद पे ठीक है। तो बात हुई मुसाफ, बात हुई हमारे दरमियान में कि बोले भाई साहब कि आप अपने एक आलिम सवाल है हमारा, हल करिए हम। कौन सा वही आप किस हैसियत से आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद की वजह से रफ़ुल अदल कर रहे हैं, या हदीस और कुरान में इसलिए रफ़ुल अदल कर रहे हैं? हदीस में इसलिए रफा नहीं कर रहे सही कर रहे हैं, है ना? अब की बात है ये, अल्लाह हाज़िर नाज़िर और ये सब सारे लोग गवाह हैं, समझ रहे हैं? तो अगर कुरान और हदीस में है इसलिए नहीं कर रहे हैं आप, तो फिर आप हनफी हैं या नहीं है? हनफी हैं या नहीं? फिर यहाँ पे कैसा है मुनसलिक सवाल है वो। सवाल है ना, जो फरीक़ें हैं, ये जो सवाल सामने वालों को मौजूद से आइडेंटिफाई मुताल्लिक नहीं, मौजूद से मुताल्लिक क्यों नहीं है? बात आपकी आप आई फरीक़ैन के यहाँ मुसल्लमा उसूल बुनियादों पर होगी ना, फरीक़ैन की यहाँ मुसल्लमा बुनियाद है कि इसको तो यहाँ वादे पे करेंगे ये ना। बहस नहीं है मैं हनफी हूँ नहीं हूँ, फिर यहाँ पे आप लिखे ना ये चीज़। ये बहस फरीक़ैन के मुसल्लमा बुनियादों पर होगी। आपके यहाँ मुसल्लमा बुनियाद क्या है, हमारे यहाँ मुसल्लमा बुनियाद क्या है? मेरे पास मुसलमान में कुरान हदीस है ना मुसाफ, कुरान हदीस है, इजमा उम्मत है, क़ियास शरई है। आपके यहाँ जी मुसाफ हमारे पूरे मसाली के अरबा के पास, मिसाली के अरबा के पास जी मुसाफ है ना, हदीसों के यहाँ कुरान हदीस है। किसने कहा ये बात? किसने कहा ये? कुरान हदीस, कुरान हदीस इधर इधर नहीं इधर देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप मैंने शुरू में वादे किया कि आप कहते हैं नौजवान कहते हैं, मैं भी कहता हूँ आपके नौजवान कहते हैं, इमाम अबू हनीफा करते रहते हैं, ये कहते हैं ना, फ़िक़्ह हनफी कहते हैं, हम हनफी हैं इसलिए करते हैं ऐसा। तो अगर नौजवानों की बुनियाद पर बात करनी है या उनकी बुनियाद पर बात करनी है तो बात नहीं शुरू होती ना। हमारे यहाँ जो मुसल्लमा है बुनियाद वो क्या है, आपको इनकी ज़ुबान से सुनकर या उनकी ज़ुबान से सुनकर नहीं साबित करना, आपको हमारी किताबों की बुनियाद पर साबित करना, समझ रहे ना? आपने कैसे कहते कि हमारे कुरान हदीस है ना? तो नहीं है, नहीं है कुरान हदीस। आपने अपनी बुनियाद का जब जिक्र किया ना तो कहा कुरान हदीस इजमा और क़ियास क़ियास शरई। का। जब अहले हदीस की बात की क्या कहा? सिर्फ कुरान हदीस, सिर्फ का है ना, सिर्फ का है ना, सिर्फ बोला जी हाँ, बोले बोले क्या बोले? बोला आप सुने बोले हैं सिर्फ आप सुने नहीं आप बोले ना बोले बा, सिर्फ बोलेंगे ना बोले सिर्फ बोले नहीं सुने सुनो बा नहीं सुने नहीं कुरान और हदीस में तो दो पे जमा कर रिकॉर्ड तो हो रही है बात, ठीक है, वो सही है। तो सिर्फ उनके कायल नहीं आप, फिर क्या है मतलब? कुरान और हदीस कुरान हदीस यानी कि इजमा और क़ियास इजमा और क़ियास के आप मुनकिर हैं ना मुसाफ, किसने कहा है? आपके लोग ही बोलते हैं। कौन है लोग? अब
अभी वो आपकी किताबें छानेंगे तो पता चलेंगे अब तक जो नहीं, हम देखिए असल में यही मसला है कि जब हम बैठते हैं बात करने के लिए तो मुसल्लमा बुनियादों का इल्म हमको होना चाहिए। मुसल्लमा बुनियाद का लफ्ज़ लिख दिया आपने और आपको इल्म नहीं है तो फिर कैसे बात करेंगे? बता दीजिए साहब। एक नहीं बता, वो अखलाकी बुनियाद पर बात होना है तो फिर हम बता देंगे, ठीक है, हम तशरीह करेंगे, अपनी किताबें आपके सामने पेश करेंगे। जब तक मुसल्लमा बुनियादों का इल्म नहीं हो कैसे गुफ्तगू करेंगे? ठीक है, आप नहीं कर सकते ना। बेशक बेशक आप बयान कर दीजिए आप मुसल्लमा। अब हम चूँकि लोगों से गुफ्तगू करते रहते, हमारे अपने तजर्बात हैं, तो मुसल्लमा बुनियाद आपने अपने तौर पर ज़हनी तौर पर तय कर लिया है। आपने उसको वादे किया कि हमारे यहाँ सिर्फ कुरान और हदीस है, फिर आपने ये भी कहा कि आप इजमा और कयास के मुनकिर हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए आप बात करने के लिए आए ना, एक संजीदगी की बात कर रहा हूँ, है ना, संजीदगी की बात ये कर रहा हूँ कि आप बात करने आए ना तो मराजे में से कोई मर्जा आप साथ में नहीं लेकर आए। मराजे में से कोई मर्जा की किताब आप साथ में नहीं लेकर आए। और क्यों कौन सा मराजे? ये जो साथ में है नहीं आपके, है ना, ये रद्द और मुखालफत में लिखी गई किताब है जिनका एक खास पस मंजर रहता है। साहब मराजे में क्या है मुन साहब? दरवाज़ में आपने हमारे सामने जो चीज़ रखी है ना वो हम देखेंगे ना, अभी आपने नहीं। छुपा कर रखी है, क्या रखी है? अभी नहीं रखा ना साहब आपके सामने में। किताब मेरे तरफ से जब आप नौजवानों की बात नहीं लेते तो फिर ये किताब भी नहीं ले सकते। अभी मैं मर्जा पेश नहीं कर रहा हूँ साहब आपके सामने। नहीं एक मिनट आप जैसा बोले ना कि इनकी नौजवानों की बात नहीं ले सकते और आपकी नौजवानों की बात नहीं ले सकते, तो ये किताब मैं नौजवान नहीं गया तो फिर आप इसको हुज्जत नहीं ला सकते। इनकी बात कर रहे हैं तो इनकी तरफ से हुज्जत उनके हाथ में भी किताब देखिए मैं मुझे मैं पेश नहीं करा ना मुझे पेश करने के बाद आप बोलना था मेरे को, आप मर्जा पेश नहीं कर रहे, आप क्या की पेश कर दिए बोल रहा। मराजे अभी हम जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं आपके सामने, अगर इससे खिलाफ है तो ठीक है उससे हम रुजू कर लेंगे, हरज नहीं उसमें, लेकिन आपको बुनियादों का इल्म नहीं फिर गुफ्तगू कर रहे, हमने हमको खंगालना पड़ता। ठीक है मुझे बैठने के लिए जब हम बैठे हैं तो खंगाल के बैठना बुनियादों का पड़ेगा। इल्म बोलो, हाँ बुनियादों का इल्म बता दो आपकी मुसल्लमा बुनियादें क्या हैं, आप बता देंगे तो बात आगे बढ़े। जो अइम्मा अरबा और उलमाए अहले सुन्नत के यहाँ है वही हमारे यहाँ भी है। वही है हाँ, लेकिन असली मरजा असल जो सरचश्मा है वो किताब और सुन्नत है, और इजमा और क़यास का उस वक्त तक वजूद नहीं हो सकता जब तक कि किताब और सुन्नत में उसकी दलील नहीं मौजूद हो। तो इसलिए हम असल मर्जे के तौर पर किताब और सुन्नत का जिक्र करते हैं। क्या कोई इजमा ऐसा हो सकता है कि जिसकी कोई असल नहीं हो किताब और सुन्नत में? नहीं हो सकता ना। तो जब हम अगर मान लीजिए आपकी फिक्र के मुताबिक जैसे लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, बात फैलाते हैं कि सिर्फ कुरान हदीस को मानने, तो अगर सिर्फ कुरान हदीस ही को मानने की बात हो जाए थोड़ी देर के लिए तो उसमें इजमा रहेगा ना, और क़यास का हुक्म कुरान हदीस के अलावा और हदीस के अलावा कहीं और से लाए या इन्हीं से लाए? ठीक है ये सर बस अलग तैयार हो गया। हमारे नबी के 4 बुनियाद हैं, आपके नबी के 4 बुनियाद हैं। हाँ फैदल ये सिलसिला अब ये रफदल की शरह है तो उसमें आपने अल्फाज दूसरे इस्तेमाल किए, पर जो अल्फाज असल है आपके वो मैं कह रहा हूँ आप लिखो उसको। आप ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ रफदल मनसूख है भी और नहीं भी। आपका ये कहना है, मैं आपको खुशी बनाता हूँ कि आप जिस तरह से कह रहे हैं मनसूख नहीं है, तो आप लिख दीजिए हमारे को। अभी बोले ना सर ठीक मनसूख नहीं है, बता अभी मनसूख नहीं है ना, मनसूख का दावा नहीं है। हमारा दावा मनसूख का नहीं है, मतलब क्या है? मनसूख का दावा नहीं है, ठीक है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। जी हाँ, मनसूख का हमारा कोई दावा नहीं है। दावा अगर करूँगा तो दलील पेश करना पड़ेगा। मनसूख का दावा नहीं हम है। मनसूख का दावा नहीं है तो मनसूख सर नहीं है बोला। राशिद जानते हैं। मनसूख का दावा करना अलग है, मनसूख है बोल देना अलग बात है। दोनों बातों में फर्क है मुझे। क्या बात है? दोनों बातों में फर्क है। मनसूख का दावा है, मनसूख का दावा है या नहीं है ये अलग बात। मनसूख का दावा नहीं है मेरा। मनसूख नहीं- जानते हैं आप, जी? दावा नहीं है, मनसूख आप जानते हैं। नहीं कुछ ना कुछ तो आप क्लियर कीजिए ना भैया। एक फॉग एक जो है ना, मनसूख का दावा नहीं है बोल के बोलूँगा। जब दो आलिम बात कर रहे हैं तो आप जरा बात उन्होंने शुरू की, तो आपसे बात की जहाँ आप ला रहे हैं, तो बैठक हुई, आलिमों की बैठक हुई, बात की।
कितने लोगों को लाए तो भी हम कानून बैठे क्यों बात कर रहे हैं हम? दूसरे लोग बात करने से बात करें ना, आलिमों इधर से की भी बात बहस करें, उधर से भी बात तो करें। आप आलिम नहीं है तो आप जरा खामोश हो जाइए। मैं बोल रहा हूँ बात बोले ये लोग बोले गलत बात है। कितने लोगों को लाए तो भी हम खामोश बैठे तुम लोग क्यों बात कर रहे हैं? क्या मालूम तुम नहीं वही बात उन्होंने भी बोल रहे हैं। वही बात हम लोग बोल रहे हैं। वही बोल रहे हैं उन्होंने भी। नहीं वही बोल रहे हैं उन्होंने भी कि जब आलिम साहब बात कर रहे हैं। आलिम बात करने बैठे दोनों बात कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ गलत बोला भाई आप लोग। अगर मेरे से तकलीफ हुई ना मैं माफी चाह रहा हूँ। बात नको करो जी, हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उन्होंने बात मत करो। ठीक है आप पे खामोश बैठ ठीक है, आराम से खाऊं कर रहा हूं मैं। नहीं तो इसको क्लियर की तरह ये रफुल यदैन के सिलसिले में आपका नुक्ता नज़र क्या है? साहब मनसूख का दावा नहीं होने वाला। मनसूख का दावा अगर होगा तो मनसूख को साबित करना मेरे जिम्मे लाजिम है। मनसूख का दावा नहीं है मेरा। है क्या फिर? मनसूख का दावा नहीं है मेरा। क्या है यदैन के सिलसिले में आपका नुक्ता नज़र क्या है? रफ़ा यदैन के सिलसिले में मेरा नुक्ता नज़र ये है कि मुझे अहादीस रफ़ा यदैन जो अहादीस मुबारक में मरवी है वो तमाम अहादीस जो है दवाम रफ़ा यदैन बक़ाए रफ़ा यदैन के सिलसिले में साकित है, खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उनसे मालूम नहीं होता कि जो है दवाम रफ़ा यदैन है या बक़ाए रफ़ा यदैन है, समझ में नहीं आता। दवाम रफ़ा यदैन बक़ाए रफ़ा यदैन एक ही बात है। तो सबूत शय है सिर्फ उन जो बुखारी की हदीस आप पेश करते हैं। सबूत शय अल्लाह के नबी करे अल्लाह के हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह माफ़ी चाह रहा हूँ हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अल्लाह के नबी के तरीक़ा नमाज देखिए वो जी तरीक़ा नमाज अपने शागिर्दों के सामने बयान करें, उसमें इस तरह से रफ़ा यदैन किया, ठीक है ना। तो उसमें अल्लाह के नबी का रफ़ा यदैन करना साबित है, लेकिन अल्लाह के नबी ज़िंदगी भर रफ़ा यदैन करते रहे ये साबित नहीं हो रहा। सफ़ाई नहीं इबारत में सफ़ाई नहीं, अभी बात पूरी ना करा, ठीक है। तो अल्लाह जो अहादीस तरके रफ़ाई के हैं ना मतलब, तो ये अहादीस रफ़ा यदैन में दो एहतिमालात थे। एक था बक़ाए रफ़ा यदैन का और एक था क्या बोलते उसको नस्ख बोल देंगे। वो मनसूख बनना चाह रहे हैं बात मतलब ये कि जो बात है दो आपकी जिहादें। दिल में तो ज़ुबान पर उसको ले आइए, जो एहतिमाल छुपाने की ज़रूरत नहीं। नहीं दो एहतिमालात, हाँ। ठीक है, दो एहतिमालात थे। एक एहतिमाल बक़ाए रफ़ा यदैन और एक एहतिमाल नस्ख रफ़ा यदैन। तो ये तरके रफ़ा यदैन की जो हदीसें हैं वो नस्ख रफ़ा यदैन की जो जिहत थी उसको राजह कर दिया, ठीक है। तो अब देखो डायरेक्ट दावा करा अलग बात, यहाँ से मैं इशारा निकाला ये गलत बात, ठीक है। मैं नस्ख का दावा करूँगा तो साफ़ सुथरी हदीस आपके सामने पेश करना पड़ता, नस्ख की दलील तो वो नहीं पेश कर सकता है। तो क्या है नमाज की बात करें आपने की आपने किया क्या है ये? मैं आपको मेहरबानी करके चाहूँगा थोड़े हम बाहर दे दीजिए क्या है इसमें मतलब